Previous class we have studied subject verb concord, and we have seen that a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. So subject verb concord means the agreement of a verb with its subject in person and number. And we have already discussed 6 rules. The first rule is that if two or more than two singular subjects are joined by and conjunction, the verb is plural. If two or more than two singular subjects joined by and conjunction, the verb is plural. We have already discussed. For example, Rohan and Mohan are good neighbors. Two singular subjects, Rohan and Mohan. Second rule was that if two or more than two singular subjects joined by and conjunction which express only one idea or concept, the verb is singular. Just contradictory. If two or more than two singular subjects joined by and conjunction express only one idea or concept, the verb is singular. That's different from the first rule. For example, slow and steady wins the race. Two subjects, slow and steady. So verb should be plural, but what is verb? Wins. Why? The idea is only one. Concept is only one. What is the idea or concept? Winning the race. Okay, only one idea. So, two or more than two singular subjects joined by and conjunction which express only one idea or concept, the verb is singular. Okay. Now, third rule. If two or more than two singular subjects joined by and conjunctions refer to only one person or same person, the verb will be singular. For example, once again I am repeating, if two or more than two singular subjects joined by and conjunction refer to the same person, the verb is singular. How we will recognize it? If we find only one article or only one determiner. Only one determiner we have already discussed. For example, the poet and politician has come. So how many determiners are here? Only one. The poet and politician. How many articles? Only one. The poet. So verb will be singular. Why? Because only one article but two subjects, poet and politician, refer to same person. जो poet है वो politician भी है. For example, late अटल बिहारी वाजपेयी, वो poet भी थे और politician भी थे. The poet and politician has come. अगर टू आर्टिकल्स लगाते हैं, द पोएट एंड द पॉलिटिशियंस, द पोएट एंड द पॉलिटिशियन, तब हैव कम हो जाएगा. तो कब दो व्यक्ति हो गया, पोएट भी आए हैं और पॉलिटिशियन भी आए हैं. वाई? वी विल रिगार्ड टू पर्सन्स बिकॉज टू आर्टिकल्स आर यूज, द पोएट एंड द पॉलिटिशियन. उसी प्रकार से अगर एक डिटर्मिनर रहे, जैसे कि तो पर्सन एक ही रिफर होगा. जैसे माई फादर एंड गाइड इज वेरी काइंड टू मी. हाउ मेनी डिटर्मिनर हियर? ओनली वन. माई फादर एंड गाइड, मेरे फादर मेरे गाइड भी हैं, इसलिए एक ही व्यक्ति रिफर हो रहा है, तो वह विल बी सिंगुलर. और ऐसा होता है, दो डिटर्मिनर होता है, माई फादर एंड माई गाइड आर वेरी काइंड टू मी, यानी मेरे फादर तो काइंड है ही, मेरे गाइड भी मेरे प्रति काइंड है. अंडरस्टैंड? ये कहने का मतलब हुआ. तो टू आर्टिकल्स होगा, टू पर्सन्स,
2 डिटर्मिनर्स होगा 2 पर्सन्स, एक ही आर्टिकल होगा एक ही डिटर्मिनर होगा तो ओनली 1 पर्सन। ये 3 रूल हम लोग डिस्कस किए हैं। 4th रूल में हमने डिस्कस किया था कि अगर each everyone someone no one no either neither many a variety of the number of anybody somebody etc take singular verb, ये हम लोग डिस्कस किए थे। और 5th रूल में है when 2 subjects are joined by or either or neither nor not only but also the verb agrees with the second subject, ये 5th रूल है। Once again I am repeating, when 2 subjects are joined by or either or neither nor not only but also the verb agrees with the second subject। अब 6th रूल में जस्ट अपोजिट है। When 2 subjects are joined by as well as with along with together with rather than verb agrees with the first subject, not only but also or either nor neither nor verb agrees with the second subject, as well as with together with along with rather than the verb agrees with the first subject। For example, Rohan as well as you are guilty, Rohan as well as you is guilty। लगता है यहाँ पर आर होना चाहिए यू के अनुसार, लेकिन हम जानते हैं अगर एज वेल एज आएगा तो वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। रोहन एज वेल एज यू इज गिल्टी, यू के साथ यहाँ पर इज इसलिए हुआ क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, वो रोहन है। ये आपको था 5th रूल। अब आपको जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं, 6th रूल था ये। अब 7th रूल हम डिस्कस कर रहे हैं। ए कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन takes a singular verb when it is considered as a unit। कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं ना? अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, अ बंच ऑफ कीज, कीज है लेकिन आपके पहले क्या है, बंच है, सिंगुलर, एक बंच है, एक गुच्छा है, इसलिए वर्ब हो जाएगा इज। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। तो उसी प्रकार से वो एक यूनिट के रूप में है बंच ऑफ कीज। तो when it is considered as a unit, for example, the committee, कमिटी वर्ड बड़ा यूनिक वर्ड है। इस वर्ड में 3 लेटर्स आर रिपीटेड, डबल एम डबल टी डबल ई। इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट, कमिटी ने अपना प्रेसिडेंट का चुनाव किया है। ऑप्शन है सपोज, है और है। तो चूंकि कमिटी एक यूनिट के रूप में आया है सर्वसम्मति से, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ सर्वसम्मति? यूनेनिमसली। यूनेनिमसली मतलब सर्वसम्मति से, एक यूनिट के रूप में सब ने मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव किया है, एक यूनिट के रूप में आया है। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? है।
लेकिन इसमें एक नोट है, बट when the members of the group, यूनिट के रूप में नहीं, when the members of the group are considered as individuals, the verb is plural. सबका अलग अलग ओपिनियन है, इंडिविजुअल, सबका एक यूनिवर्सली नहीं है, अलग अलग है। तो वैसे हालत में वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी, जूरी मीन्स अ बेंच ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस। जैसे कि जूरी बनता है, उसमें उस जूरी में 3 या 4 या 5 लोग मेंबर्स होते हैं, सबका मान लीजिए अलग अलग ओपिनियन है। तो वैसे हालत में सबका कंसिडरेशन इंडिविजुअल के रूप में होता है, सर्वसम्मति से नहीं होता है, नॉट एज यूनिमसली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ऑप्शन आपके पास में है वॉज और वेयर। अब सब चूंकि यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, ओपिनियंस में डिफरेंट हैं, तो इंडिविजुअल्स के रूप में ओपिनियन आ रहा है, नॉट एज यूनिट, यूनिट के रूप में नहीं आ रहा है। जबकि ये कलेक्टिव नाउन है, अ बेंच ऑफ जजेज, अ ग्रुप ऑफ जजेज, फिर भी ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट हो रहा है, इंडिविजुअल्स के रूप में उसका जो है ओपिनियन आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में वर्ब विल बी प्लूरल। ओके, नाउ द फॉलोइंग नाउन्स दो singular in form but plural in meaning take plural verb। फॉर्म में सिंगुलर है लेकिन मीनिंग में प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दीज नाउन्स आर, फॉर्म में क्या होगा? वो सिंगुलर, मीनिंग में क्या हो जाएगा? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। ऐसे नाउन्स हैं कैटल। अब आप देखेंगे फॉर्म में सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, लेकिन मीनिंग ऐसा क्या है? प्लूरल है। कैटल मीन्स मवेशी, अब काव भी है, बफेलो भी है, सीप भी है, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल, मीनिंग में प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल हो जाएगा। उसी प्रकार से पुलिस, पुलिस कभी भी अकेले नहीं चलती है, ग्रुप में चलते हैं। पब्लिक, आप देखेंगे इसमें एस नहीं लगा हुआ है, फॉर्म सिंगुलर है लेकिन मीनिंग तो प्लूरल है। पब्लिक में एक आदमी तो रहता नहीं है, पुलिस एक व्यक्ति पुलिस चलता है तो राइफल ही उसका लूट लेगा, ठीक है। तो मीनिंग सर क्या है? प्लूरल है। तो वैसे कंडीशन में
वर्ब भी क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। फोक, फोक मीन्स कॉमन पीपल, साधारण लोग। और दूसरा हो गया जेंट्री, मीन्स ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जो जेंटलमैन है। ये तो हो गया फोक कॉमन पीपल, ये हो गया वीआईपी पीपल। इसे भी एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन पीपल है, वीआईपी पीपल, कॉमन पीपल, मीनिंग प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। पीपल, स्टाफ। एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि स्टाफ का प्लूरल स्टाफ ही होता है, इसमें एस नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग जो है स्टाफ को समझते हैं सिंगुलर है, एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। नो, दैट इज ब्लंडर। मैनकाइंड, it is easy. The cattle grazing in the field. You have two options, A, R. तो फॉर्म तो सिंगुलर है, because S is not added here, but meaning is plural, so the verb will be also plural. Take the screenshot. I am going to rub it out. Okay. Now rule number 9. क्या था, द फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, वर्ब विल बी प्लूरल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द फॉलोइंग नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म बट मीनिंग इज सिंगुलर, द वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर। मीनिंग पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 9, the following nouns though plural in meaning, plural in form, but singular in meaning, take singular verb। इसके पहले रूल नंबर 8 में क्या था, द फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, टेक प्लूरल वर्ब। जस्ट अपोजिट, दो प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। These nouns are फॉर्म में क्या होगा, प्लूरल, एस वहां पर रहेगा। मीजल्स, मीजल्स क्या हो गया, एक डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, एस लगा हुआ है। फॉर्म में क्या है, प्लूरल, मीनिंग क्या है, सिंगुलर, बिकॉज इट इज ए डिजीज। इकोनॉमिक्स, फॉर्म प्लूरल है बट मीनिंग इज सिंगुलर, इट इज ए सब्जेक्ट। सिविक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज। देखिए फॉर्म में प्लूरल है बट मीनिंग सिंगुलर,
समन्स, लीगल कोर्ट नोटिस इज कॉल्ड समन्स। लगता है कि ये प्लूरल है, फॉर्म इज प्लूरल बट मीनिंग इज सिंगुलर, लीगल कोर्ट नोटिस, तो इसका प्लूरल तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ईएस लगा देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा। दिस इज ए सिंगुलर फॉर्म। लगता है, एस है तो प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, फॉर्म प्लूरल बट मीनिंग सिंगुलर, मीन्स, etc. Example, politics dash a dirty game. Option is A. Form is what? Plural, but meaning singular. So what will be? Singular. Now rule number 10. अब ऐसे नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका फॉर्म भी प्लूरल होगा और मीनिंग भी प्लूरल होगा, तो ऑब्वियसली है तो वो भी प्लूरल होगा। द फॉलोइंग नाउन्स which are plural in form as well as the following nouns which are plural in form and meaning take plural verb। क्या, इसको एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। रूल क्या था? फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म बट मीनिंग प्लूरल, द वर्ब विल बी प्लूरल। द फॉलोइंग नाउन्स द फॉर्म विल बी प्लूरल बट मीनिंग इज सिंगुलर, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। अब क्या है, फॉर्म भी सिंगुलर प्लूरल है और मीनिंग भी प्लूरल है, तो वर्ब और ऑब्वियसली है वो प्लूरल। These nouns are pants, फॉर्म प्लूरल है, एस एडेड है यहाँ पर। पैंट का एक पार्ट नहीं होता, दो पार्ट होता है, आप जानते हैं। सॉक्स, एक सॉक पहनते नहीं हम लोग। शूज, ट्राउजर्स, सीजर्स, आप जानते हैं कैंची में दो ब्लेड होते हैं। पिंसर, जिसे चिमटी बोलते हैं, दो उसमें फॉर्क होते हैं। आर्म्स, भिक्षा, बेगर आता है एक भिक्षा लेकर के, वो एक घर में जाता है और वो आर्म लेके वापस अपना घर नहीं चले आता है। He goes door to door. So meaning plural, form is also plural and verb will be also plural. Spectacles, देखिए अब स्पेक्टेकल्स दो पार्ट है। सर्कमस्टेंसी,
reaches, etc. I want to make one thing clear. Reach means अमीर. The rich plural हो गया, अमीर लोग. रिचेज क्या हुआ? धन संपत्ति. इसमें सोने आ जाएंगे, हीरा आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, घर होगा, मकान होगा. तो फॉर्म भी प्लुरल है, मीनिंग भी प्लुरल है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा. एग्जाम्पल, this man, not this man, this man's spectacles option is form plural, meaning plural, verb भी also plural. HW, memorize rules from 1 to 10. That's all. Thank you. Take the screenshot, and I hope you must have understood the lesson. Okay.